Assalamualaikum students, I hope you will be fine. In today's video, we will discuss our translation of unit number 13, Faithfulness. Students, in this video, I'll also tell you the meanings of the difficult words. With the help of these meanings, you can translate the whole unit by your own self. Okay, now let's begin with the very first paragraph. Once Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala anhu sitting in the masjid of the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam was busy in the affairs of the state. एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठे रियासत के मामलात में मशगूल थे. Two young men holding a strong and sturdy countryman appeared before him. दो नौजवान एक तवाना और हटे कटे देहाती को पकड़े आपके सामने आए. They complained to Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala anhu that the person had murdered their old father. उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शिकायत की कि एक आदमी ने उनके बूढ़े बाप को कत्ल कर दिया है. They demanded justice by punishing the murderer for his crime. उन्होंने कातिल को उसके जुर्म की सज़ा देने का मुतालबा करते हुए इंसाफ मांगा. Students, in this paragraph, the word Masjid of the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam means Masjid Nabwi. Strong, मजबूत, affairs, मामलात, sturdy, हटा कटा या मजबूत, countryman, देहाती, murderer, कातिल. Now move to paragraph number 2. The Caliph looked at the young man and said, "You have heard the charge leveled against you." खलीफा ने नौजवान को देखा और फरमाया, तुमने अपने खिलाफ लगाया गया इल्ज़ाम सुन लिया है. What have you to say in your defense? अपने दिफा में कहने के लिए तुम्हारे पास कुछ है? The villager replied, देहाती ने जवाब दिया, Commander of the faithful, अमीरुल मोमिनीन, I plead guilty to the charge. मुझ पर जुर्म का इल्ज़ाम लगा है. I was leading my beloved camel. मैं अपना एक महबूब ऊँट लिए जा रहा था. When I reached a garden and halted to rest, the camel nipped a few leaves off the हैंगिंग ब्रांच ऑफ अ ट्री. जब मैं एक बाग में पहुंचा और आराम करने के लिए रुका, ऊँट ने एक दरख्त की झूलती शाख से चंद पत्ते काट लिए. द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, ऑन सीइंग दिस, ये देखते हुए, हर्ल्ड अ स्टोन एट द कैमल विद ऑल हिज माइट. बूढ़े आदमी ने अपनी पूरी कुव्वत से ऊँट को एक पत्थर दे मारा. The stone caught the camel on the side of the head. पत्थर ऊँट के सर के पहलू में लगा. It reeled and fell down dead. ऊँट ने चक्कर खाया और गिरकर मर गया. The camel was very dear to me. ऊँट मुझे बहुत प्यारा था. I could not control my anger. मैं अपने गुस्से पर काबू ना पा सका. So I took the same stone. इसलिए मैंने वही पत्थर उठाया. That had killed my dear camel and hurled it at the old man with all my strength. और उसे अपनी पूरी कुव्वत से बूढ़े को दे मारा. The stone hit the old man on the head and पत्थर बूढ़े के सर पर लगा and subsequently killed him, और नतीजतन उसे मार कर रख दिया. At this, इस पर, these two young men came to me and I surrendered myself to them. तो इस पर तब ये दोनों नौजवान मेरे पास आए और मैंने खुद को इनके हवाले कर दिया. कैलिफ, खलीफा, as you have confessed your crime, जैसा कि तुमने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया है, there is no need of witnesses, तो इसलिए किसी जो गवाह की ज़रूरत नहीं है. You are therefore sentenced to death, लिहाजा तुम्हें मौत की सज़ा सुनाई जाती है. Villager, देहाती, I accept my sentence but request you to delay the execution for 3 days.
मुझे ये सज़ा कबूल है, मगर मैं आपसे इस पर अमल दरामद करने के लिए 3 दिन की ताख़ीर की दरख्वास्त करता हूँ। कैलिफ खलीफा, वाई डू यू आस्क फॉर डिले इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस। सज़ा की अमल दरामद में तुम ताख़ीर क्यों चाहते हो। विलेजर देहाती, माई फादर ऑन हिज डेथ लेफ्ट सम गोल्ड फॉर माई यंगर ब्रदर। मेरे वालिद ने मरते हुए मेरे छोटे भाई के लिए कुछ सोना छोड़ा। हु इज़ टू यंग टू बी टोल्ड अबाउट द प्लेस वेयर आई हिड इट। और मेरा भाई इतना छोटा है कि उसे उस जगह से मुतल्लिक नहीं बताया जा सकता जहां मैंने सोने को छुपाया है। I have buried the gold in the earth in a field and no one knows the place. मैंने सोना एक मैदान में ज़मीन में डुबा दिया है और किसी को भी वो जगह मालूम नहीं है। If my brother, अगर मेरा भाई on account of my death does not get his due share, I shall be called to account on the day of. Now students, move to next page. Judgment for being dishonest. मेरी मौत के सबब अगर मेरा भाई वाजिबुल वसूल हिस्सा ना ले पाया तो क़यामत के दिन मुझसे इस बेईमानी की बाज़पुर्स होगी, यानी कि इसके बारे में पूछा जाएगा। Be kind and grant me 3 days time. रहम करें और मुझे 3 दिन की मोहलत दें। After handing over the gold to the trustee, I will return to face death. सोना अब किसी अमीन को सुपुर्द करने के बाद मैं मौत का सामना करने लौट आऊँगा। कैलिफ, have you anyone who can stand as surety and who will be willing to suffer death if you fail to return? तुम्हारे पास कोई ऐसा शख्स है जो तुम्हारा ज़ामिन बन सके और जो तुम्हारे ना लौट सकने की सूरत में जान देने के लिए तैयार हो। विलेजर देहाती, लुकिंग एट द पीपल प्रेजेंट इन द कोर्ट एंड पॉइंटिंग टू हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दिस जेंटलमैन विल स्टैंड एज माई श्योरिटी। अदालत में मौजूद लोगों की तरफ देखते हुए और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ इशारा करते हुए ये भला शख्स मेरा ज़ामिन बनेगा। कैलिफ, एड्रेसिंग हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डू यू एग्री टू स्टैंड एज श्योरिटी। खलीफा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुखातिब होते हुए, क्या आप ज़ामिन बनने की हामी भरते हैं। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आई डू, मैं हामी भरता हूँ। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज अ हाईली रिस्पेक्टेड सहाबी। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहायत ही मुअज़्ज़ज़ सहाबी थे। द कैलिफ एक्सेप्टेड हिम एज़ द श्योरिटी। खलीफा ने उनको बतौर ज़ामिन कबूल कर लिया। बोथ द अक्यूज़र्स विल आल्सो एग्रीड टू इट एंड द क्रिमिनल वाज अलाउड टू लीव। इसलिए दोनों मुद्दई भी इस बात पर राज़ी हो गए और मुजरिम को जाने की इजाज़त दे दी गई। द थर्ड डे डांट, तीसरे दिन का सूरज तलू हुआ। द अक्यूज़र्स एंड द श्योरिटी वर प्रेजेंट एट द मस्जिद ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुद्दई और ज़ामिन मस्जिद नबवी में मौजूद थे। दे वर वेटिंग फॉर द क्रिमिनल। वो मुजरिम के लौट आने के मुंतज़िर थे। एज़ टाइम पास्ट, जूँ वक्त गुज़रता गया, सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम फेल्ट एंग्जियस फॉर द फेट ऑफ हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किस्मत से मुताल्लिक़ फ़िक्रमंद होने लगे। When only an hour remained, both the accusers came forward and demanded from Hazrat Abu Zar Ghaffari रज़ी अल्लाह ताला अन्हु their man.
जब सिर्फ एक घंटा बाकी रह गया तो दोनों मुद्दई आगे आए और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से अपना मुजरिम तलब किया। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वेट अ लिटल मोर, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थोड़ा और इंतज़ार करो। देयर इज़ स्टिल टाइम, वक्त अभी बाकी है। इफ़ ही डज़ नॉट कम, अगर वो ना आया, आई विल गिव माई लाइफ इन हिज स्टेड टू फुलफिल द जस्टिस, तो इंसाफ की तकमील के लिए उसके बदले में मैं अपनी जान दूंगा। कैलिफ, इन केस द मर्डरर डज नॉट रिटर्न द लॉ विल हैव इट्स कोर्स। खलीफा, कातिल के ना लौटने की सूरत में कानून अपने तकाजे पूरे करेगा। हियरिंग दिस, द सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम became more anxious for the safety of हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु and their eyes were filled with, ये सुनकर सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सलामती से मुतल्लिक फ़िक्रमंद हो गए और उनकी आँखों से आंसू छलकने लगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। Some requested the accusers to accept blood money, चंद एक ने मदइयान से खून बहा कबूल करने की दरख्वास्त की, बट दे रिफ्यूज़ड, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, सेइंग, ये कहते हुए, आर डिमांड इज़ लाइफ फॉर लाइफ, हमारा मुतालबा ज़िंदगी के बदले ज़िंदगी है। नाउ स्टूडेंट्स मूव टू पैराग्राफ नंबर 7। When the whole court was in a worried state of mind, the villager reached there, जब पूरी अदालत फ़िक्रमंदी की हालत में थी तो देहाती वहाँ पहुँच गया। परस्पायरिंग फ्रॉम हेड टू फुट, सर से पाँव तक पसीने में भिगा हुआ। एज ही एंटर्ड, जैसे ही वो दाखिल हुआ, ही सल्यूटेड द कैलिफ एंड सेड, उसने खलीफा को सलाम किया और कहा, अल्लाह बी प्रेज्ड फॉर हिज मर्सी, अल्लाह का शुक्र है। I was able to make my uncle trustee of the gold, मैं अल्लाह इसके रहम के सबब मैं अपने चचा को सोने का अमीन बनाने के काबिल हो पाया। As you see, I am right in time, do not delay the execution, आप देखें मैं ठीक वक्त पर आ गया हूँ, अब सर कलम करने में देर ना करें। Now move to paragraph number 8। All the people present there were astonished at the honesty and faithfulness of the criminal, वहाँ मौजूद तमाम लोग मुजरिम की सच्चाई और वफ़ादारी पर हैरान रह गए। Now move to paragraph number 9। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, commander of the faithful, the man was totally a stranger to me, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन, ये आदमी मेरे लिए बिल्कुल ही अनजान था। I had never known or seen him before, मैंने ना ही इसे कभी देखा था और ना ही इसे जानता था। But when out of all the bystanders he selected me as his surety, I could not but agree, मगर यहाँ मौजूद तमाम लोगों में से इसने जब मुझे अपना ज़ामिन चुना तो मैं माने बगैर ना रह सका। If he had not returned, I would have gladly laid down my life for him, अगर ये वापस ना लौटता तो मैं खुशी खुशी अपनी जान दे देता। विल्जर, देहाती, सर जनाब, when you agreed to stand as a surety for a stranger, जनाब जब आप एक अजनबी के लिए ज़ामिन बनने के लिए तैयार हो गए, it would be against all rules of manliness and chivalry to endanger your life to save mine, तो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए आपकी ज़िंदगी को ख़तरे में डालना जो शुजाअत और शाइस्तगी के सब असूलों के ख़िलाफ़ होता। अक्यूज़र्स, मदइयान, ऑफ वन अकॉर्ड, यक ज़ुबान, कमांडर ऑफ द फेथफुल, अमीरुल मोमिनीन, वी forgive him, let him live, हम इसे मुआफ़ करते हैं, इसे ज़िंदा रहने दीजिए। Now move to paragraph number 10।
On hearing these words, ये अल्फाज सुनकर the audience present in the court gave cries of joy and applause, and the face of the caliph beamed with pleasure and he said, ये अल्फाज सुनकर अदालत में मौजूद तमाम सामईन ने मुसर्रत व आफरीन की सदाएं बुलंद की और खलीफा का चेहरा खुशी से दमक उठा और उन्होंने फरमाया, यंग मैन, नौजवानों, द ब्लड मनी विल बी पेड टू यू फ्राम द पीपल्स ट्रेजरी एंड अल्लाह विल रिवार्ड यू फॉर हिज गुडनेस ऑन द डे ऑफ जजमेंट। जवानों, आपको खून बहा अवामी ख़जाने से अदा किया जाएगा और अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ इस नेकी के बदले तुम्हें अज़ाज़ो इकराम से नवाज देगा। नाउ मूव टू पैराग्राफ नंबर 11। Accusers, Mudayyan, Commander of the Faithful, Amirul Momineen, we forgive him as forgiveness is divine and therefore we respectfully refuse to accept any blood money. अमीरुल मोमिनीन, हम इसे मुआफ़ करते हैं क्योंकि मुआफ़ करना अल्लाह की सिफ़त है और इसलिए हम बड़े एहतराम से खून बहा की कोई भी रकम कबूल करने से इनकार करते हैं। Now students, I hope the translation of unit number 13 faithfulness is cleared, and if there is any confusion in your mind then you can ask in comment section, and if you like my video then share it with your friends and also subscribe our YouTube channel Malik Science Academy and press the bell icon for notifications. You can also visit our Facebook page Malik Science Academy, and also you can follow us on Instagram Malik Science Academy. Okay students, we will meet in next video. Till then, Allah Hafiz.